ऐसा हम्म, नहीं हो सकता, आई कैन बेट यू, ऐसा हो ही नहीं सकता कि यू आर अ ग्रेट एंटरप्रेन्योर एंड यू आर स्टूपिड. हम्म, You not are possible. a very, very, very good student. In fact, more you learn, more you realize that you literally know Hmm. so little. And unfortunately, that is how it is designed. Like it's like I was talking to somebody and I was just giving an example कि अब आपको एक्टर बनना है तो मुंबई जाना ही पड़ेगा ना. हम्म, अब आप दिल्ली में बैठ के बोलो कि मैं एक्टर बनूंगा तो आप थिएटर कर सकते हो. right. Hello and welcome all. Welcome to your favorite podcast with your tech doc Rohan. Today we have a very special guest with us whose introduction has a story in itself, and story is what he does for the startups. A young chap who started his journey like a tech trainer. He did not stop there. He started his tech company and then worked with top national accelerators. Not only that, throughout the way, he is helping a lot of students across colleges. Now he's also having his multiple businesses. You might have heard the name called Code Science Lab and PowerDAC. Let's welcome the man, Dilnawaz Khan. Hello, sir. Welcome to our show. We Thank warmly you. welcome you. Thank you, Rohan. Such a pleasure. Really appreciate you bringing me on your show, and I really appreciate that. Thank you so much, and thank you for inviting me. So, sir, this podcast is generally for the students coming out of engineering colleges and seeing all the options. Before that, मैं ये जानना चाहूंगा, how was your life as a student? Were you an average student or pass I, हुए I or you were good? I was a very good student, by the way. On. So and generally पढ़ाई में मजा आता था. तो मैं टॉपर नहीं था. But I always tell this to people that I missed my honors degree in engineering by 14 marks. Right, वो भी मेरे मैथ्स टीचर ने मुझको मिड टर्म मिस करने पे नहीं दिए होते बिकॉज आई वेंट अंडर सम हेल्थ इशू. तो मुझको मेरे पास ऑनर्स डिग्री होती तो मैं नर्ड नहीं था, पढ़ाकू. मैं आई नॉट से नर्ड, मैं आई वुड से मैं पढ़ाकू या किताबी कीड़ा नहीं था, बट आई एम स्टिल अ नर्ड. So I like reading. I want to understand science behind everything. I generally want to understand tech stuff. I'm generally a very curious person. तो बहुत अच्छा student था. My teachers can still vouch for that. I used to do all my proper assignments properly, whether in school, whether in college. तो अच्छा बच्चा था मैं, अच्छा था पढ़ाई में, अच्छा student था. You know, I had this notion कि सर शायद average होंगे, but it's good to know that it is a little different. So मैं आपके इस बात पे एक चीज ऐड, मुझे ना बहुत सारे जब कॉलेजेस मिलने बुलाते हैं, बात करते हैं, तो a lot of people, top management, I'll not take any names, have sometimes said कि हमारे यहाँ पे ना आप इंक्यूबेशन सेंटर पे बनाने में हेल्प कर दो और उन लोगों की प्लेसमेंट करवा दो जिनकी प्लेसमेंट नहीं हो रही है, मतलब उनको स्टार्टअप करवा दो जिनकी प्लेसमेंट नहीं हो रही है. एंड आई एम लाइक, द टॉप एंटरप्रेन्योर कम फ्रॉम टॉप 1% ऑफ द पीपल, राइट. वो एक आध एक्सेप्शनल केस हैं, बैक बेंचर से एंटरप्रेन्योर निकल के आगे, बट तब मैं उनको बोलूंगा कि ट्रेडिशनल पढ़ाई में उनका मन. बट आज आप देखो ना, आई वाज जस्ट सीइंग सम रिपोर्ट कि आई थिंक 50% ऑफ यूनिकॉर्न्स इन इंडिया आर ओन्ड बाय आईआईटी दिल्ली गाइस. Right. दैट्स अ टेस्टामेंट इन इटसेल्फ, Right, राइट. right, right. तो ये बोलने वाली बात है कि आप पढ़ाई मत करो, चाय का ठेला लगा लो तो आप एंटरप्रेन्योर बन जाओगे. बट आई थिंक एजुकेशन and formal education plays a very significant role. I'm a very big believer of formal education. तो मुझे तो डेफिनेटली लगता है कि अगर आप पढ़ने में अच्छे हो और आपको वो मेहनत करनी आती है और आपको वो समझ डेवलप करनी आती है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच आपका है, ठीक है, और वो आपका फिर एक एस्पिरेशन है कि इतने नंबर लाने हैं, आई थिंक you have those entrepreneurial traits, then you will be a better entrepreneur compared to somebody who is like maybe not a backbencher but doesn't take studies seriously. मतलब it's tougher than that. So I think आप जो बोलना चाह रहे हैं, maybe curiosity is the right word to know things, to learn things better, कि क्या है उसके पीछे क्या है. बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, मतलब आपको क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, आप में प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए, आप में पेशेंस. क्योंकि अब हम स्टूडेंट्स के बारे में बात करें, आप देखो ना, हम एंटरप्रेन्योर्स के लिए बोलते हैं, आई एम अ फाउंडर ऑफ अ कंपनी माई सेल्फ, 15 साल इकोसिस्टम में हो गए मुझको. हम फाउंडर्स के लिए बोलते हैं पेशेंस चाहिए. अब आप सोचो, एक एग्जाम देने के लिए 1 साल तक कोई बच्चा पढ़ता है, वो पेशेंस है कि नहीं है? बिल्कुल, बहुत रेजिलियंस चाहिए. तो वो जो दिन के 8 घंटे बैठ के पढ़ रहा है, वो रेजिलियंस ही तो है, राइट. होप चाहिए. आप एग्जाम देने वाले हो जिसमें आपको पता नहीं पेपर क्या आने वाला है, फिर भी आप एक होपफुल, एक पॉजिटिव अप्रोच से पेपर देने वाले हो. तो आई थिंक एक अच्छा स्टूडेंट, आई विल रीफ्रेज दिस, एक अच्छा स्टूडेंट
आई थिंक एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बन जाता है, और एक अच्छा एंटरप्रेन्योर बाय डिफॉल्ट अच्छा स्टूडेंट होता है. अच्छा स्टूडेंट होता है, राइट. या दैट्स तो मच बेटर दे वे. आर कोरिलेटेड. ऐसा नहीं हो सकता, आई कैन बेट यू, ऐसा हो ही नहीं सकता कि यू आर अ ग्रेट एंटरप्रेन्योर एंड यू आर स्टूपिड. You Not are possible. a very, very, very good student. In fact, more you learn, more you realize that you literally know so little, right? तो वो by default ही देखो ना पीछे हाँ. तो No, even I have a good library and nice. it's good to learn about different things ना. Yeah, absolutely. अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि when you were a student, now like there is a huge difference. अब आप देखोगे कि as in competition बढ़ गया है, साथ साथ I believe there ये is हमको one भी यही बोलते थे सब लोग उस टाइम पे शुरू से हर साल ये बोला जाता है कंपटीशन बढ़ गया है. और कहीं ना कहीं एक चीज और मैं नोटिस कर रहा हूँ, लाइक द कैरेक्टर डेवलपमेंट, द पर्सनल ट्रेट्स एज अ कैरेक्टर आर अ लिटिल लाइक, अभी डिजिटल मीडिया बहुत ज्यादा है. हम जो लर्न कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, हम सोशल मीडिया के थ्रू बहुत देख रहे हैं, तो एक कैरेक्टर डेवलपमेंट भी एक चैलेंज थोड़ा बहुत क्रिएट हो गया है. तो व्हाट डू यू थिंक कि क्या डिफरेंसेस हैं और ये जो क्या की ट्रेट्स हैं जो फोकस करने चाहिए अभी स्टूडेंट को अदर देन दी स्टडीज? आई थिंक बच्चों को लेके जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आई थिंक 2-3 चीजें हैं जो मुझे लगता है अगर वो ढंग से कर लेंगे तो थिंक दे विल बी अ बेटर स्टूडेंट एंड देन अ बेटर प्रोफेशनल, राइट? So let's start from the very basic way which we are discussing is curiosity. I think they have to be by default curious. ठीक है, उनको एक जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए चीजों को लेके, राइट? कि ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, एवरीथिंग इज जस्ट अ गूगल सर्च अवे, राइट? एंड बहुत सिंपल एक मैट्रिक्स है, आपको कोई भी चीज पढ़नी है, आप जस्ट उसके बारे में गूगल पे जाके पढ़ते चलो एंड यू स्टार्ट गोइंग डाउन दैट रैबिट होल. इवन यू नो क्यूरियोसिटी है, बट आई थिंक इट इज फ्लोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शंस, डिस्ट्रैक्टेड मोड. देखो उसका तो देन इट्स अ डिफरेंट कॉन्वर्सेशन ऑल टुगेदर, बिकॉज उसमें फिर वो पेरेंटल अपब्रिंगिंग कैसी है, ठीक है? जैसे मेरे सक्सेस को लेकर या जो भी मैंने किया है अभी तक, मतलब ऐसा कोई सब्सटेंशियल तो सक्सेस नहीं है, बट जो भी थोड़ा बहुत मैंने किया है उसमें आई थिंक अपब्रिंगिंग फ्रॉम पेरेंट्स, इन्फ्लुएंस ऑफ माय ग्रैंड पेरेंट्स एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली माय स्कूल टीचर्स, उनका बहुत बड़ा रोल मानता हूँ मैं. मतलब माय स्कूल टीचर्स लिटरली हेल्प मी टू शेप अप द कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी आई हैव टुडे, राइट? तो आई थिंक आज के जो बच्चे हैं, मतलब हमारे टीचर पीटते भी थे यार, और अच्छे के लिए पीटते थे, है ना? हाँ, तो आई थिंक उसका ना बहुत जगह फर्क पड़ता है. आपको वो ऑन एंड ऑफ बच्चे को कब प्यार से रखना है और कब डांटना है, वो एक बैलेंस मेंटेन करना चाहिए. प्लस आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, पेरेंटल बैकग्राउंड कैसा है, पेरेंट्स के एस्पिरेशन क्या है. जैसे आई रिमेंबर, मुझको आई वाज अ वेरी बिग कंप्यूटर गेमिंग फैन. मैं अभी भी गेम्स खेलता हूँ कभी कभी, राइट? बट मेरे को पता है, जब मैं छोटा था तो मेरे को हफ्ते में 1 घंटा मिलता था खेलने को, और वो पूछ के पापा से जाना पड़ता था, और वो खेल के फिर बताना पड़ता था कि 1 घंटा खेल लिया है, 10 मिनट और खेल लूँ आज, क्या अच्छा चल आज खेल ले 10 मिनट. तो वो रेस्ट्रिक्शंस थे, तो वो आई वुड सजेस्ट दीज आर गुड रेस्ट्रिक्शंस, गुड, राइट? तो वो कल्चर ही पूरा उस हिसाब से तो चेंज हो गया है. मिडिल क्लास में अबंडेंस है, यू नो, पेरेंट्स नाउ गिव आईफोन टू देयर किड्स. तो वो आई थिंक दैट्स डिफरेंट conversation altogether on the upbringing side, and I'm not an expert there, but student level पे I can for sure comment and tell कि I think awareness हो गया, curiosity हो गया, exploration हो गया, अलग अलग streams को explore करना और समझना कि किस में कैसे क्या काम होता है और हमारे लिए क्या अच्छा हो सकता है. करिकुलर एक्टिविटीज एक्सप्लोर करना, अच्छे दोस्त बनाना, अच्छे नेटवर्क बनाना, अच्छे इवेंट्स अटेंड करना, राइट? आई थिंक दीज आर अ फ्यू थिंग्स इफ दे डू इट राइट, राइट? मतलब जैसे लिंक्डइन आजकल बड़ा पॉपुलर है, अगर आप लिंक्डइन को ही ढंग से यूज कर लो एज अ स्टूडेंट, तो आई थिंक यू कैन रियली हैव अ वेरी गुड नेटवर्क. So I think all of these things, if they do right, I think they can be much ahead than their peers. I think it's better to learn from your journey. आपकी लाइफ में what were the turning points? Like यार ये turning points, इसके बाद ये चेंज हुआ, इसके बाद ये चेंज हुआ, and what did that tell? See, मैं अगर आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मैं ऐसा कोई पर्टिकुलर टर्निंग पॉइंट नहीं मानता. इनफैक्ट जैसे ना बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि आपको एक मौका मिलता पीछे जाके कुछ बदलने का, तो आप क्या बदलते हैं?
तो मेरा उस कान से शायद में कुछ नहीं बदलता, राइट, क्योंकि अच्छी चीजें भी हुई और बहुत बुरी चीजें भी हुई, बट शायद जहां पहुंचे वो उसी जर्नी के थ्रू पहुंचे हैं. द मोमेंट यू चेंज एनी ऑफ दैट वन पर्टिकुलर कैरेक्टर और वन पर्टिकुलर इंसिडेंट, राइट, वो पूरा आगे का चीज चेंज हो जाएगा, डेस्टिनेशन ही बदल जाएगा आपका. तो आई डोंट वांट टू चेंज एनीथिंग. तो मुझे इसलिए ऐसा भी नहीं लगता कि शायद एक कोई पर्टिकुलर मोमेंट होगा. आई थिंक इट्स अ कल्मिनेशन और इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल थिंग्स. मतलब बिल्कुल ही अगर चाइल्डहुड में जाऊं मैं, तो राइट फ्रॉम द हाउस आई वेंट टू, right, to the schoolhouse I'm talking about, the schoolhouse I went to my house master selecting me for a X competition, to me winning that competition, to me getting into playing basketball, to me learning computers, to somebody suggesting me ke coding seekh le, to me coming into college and winning a competition. I think it's a series long of journey. 100 activities that happened at right thing at the right time that led me to wherever I am today. So there might be situations जब आप you were in doubt, you were in confusion, that anxiety building up. That's again a common entrepreneur trait. हर दिन सुबह उठ के लगता है कि क्या कर रहे हैं यार. How do you deal with it? Like what's your formula? कुछ भी नहीं है, 10 मिनट सोचो फिर आगे बढ़ो. So there's no secret formula. I think I can tell you one substantial incident around it, which I think which you can correlate. So I think जब मैं अपने फाइनल ईयर में पढ़ रहा था स्कूल में, कॉलेज में, तो तब तक मैं अपनी कंपनी चालू कर चुका था और मेरे कुछ यूएस के एडमिशंस भी आ गए थे. मैंने जीआरई लिखा था उस साल, जीआरई टोफल, बहुत अच्छे नंबर थे मेरे, ठीक ठाक नंबर थे, लेट मी पुट इट दैट वे. तो पता नहीं एकदम से एक दिन भूत चढ़ा कि मेरा मिड टर्म था, सेकंड मिड टर्म था फाइनल ईयर का, कि छोड़ देते हैं, ड्रॉप आउट कर लेते हैं. मैं लाइब्रेरी बैठा हुआ था, बट 10 मिनट बाद मुझे कैसे क्लिक हुआ कि यार जब लिख के खत्म कर सकते तो आगे बढ़ते ना खत्म करके, क्यों ड्रॉप आउट लेना. एंड मैं उठा गया, मिड टर्म दे के आ गया मैं, राइट. एंड लाइक आई सेड, मैं ठीक ठाक स्टूडेंट था, तो मैं पता रहता था चीजों के बारे में, असाइनमेंट किए हुए, पढ़ाई की हुई है, क्लास में नोट्स बनाए, तो आइडिया है कि क्या आने वाला है, राइट. तो ऐसा कई बार हुआ, इनफैक्ट इंजीनियरिंग के कई पेपर में हुआ कि ऐसा लगा छोड़ नहीं लिखना कल पेपर. फिर सुबह 3-4 बजे सोचा कि यार जब 2 घंटा 3 घंटा पढ़ के पेपर निकाल सकते हैं तो क्यों एक साल वेस्ट करना, तो पढ़ लो 2 घंटे में करके, और अच्छे नंबर आ गए. लाइक आई सेड ऑलमोस्ट ऑनर्स डिग्री मिलते मिलते रह गई मेरे को. तो मुझे ऐसा लगता है कि वो फीलिंग आपके पास आएगी और रहेगी, कई बार वो आती जाती रहेगी. इट्स जस्ट दैट इफ यू कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम, गो एंड सॉल्व इट, राइट. बिकॉज ईदर यू कैन सॉल्व इट और यू कांट सॉल्व इट. अब थोड़ा फिलोसॉफिकल है, बट ये बहुत प्रैक्टिकल भी है, राइट. अब आप नहीं कर सकते सॉल्व, तो फिर आप नहीं कर सकते. अब भाई मुझको मर्सिडीज खरीदनी है और 1 करोड़ रुपए चाहिए, अभी इमीडिएटली 10 मिनट में नहीं आ सकते, तो फिर मैं इस पे पॉन्डर भी नहीं करूंगा. बट अगर कोई ऐसी चीज है कि यार एक क्लाइंट प्रोजेक्ट अटका हुआ है और उसको मैं 1 घंटा 2 घंटा पुश मार के आगे निकाल सकता हूँ रादर देन क्रिप करने की बजाय, तो आई बिलीव कि उसको एग्जीक्यूट करके खत्म करो एंड मूव अहेड rather than waiting and pondering about it. So I think it's a mindset that you develop over a period of time. So I think action is what is working for you, rather than ज़्यादा सोचो, हो रहा है तो करो, नहीं हो रहा तो छोड़ो, रुको मत ज़्यादा. Ability to take quick actions and execute, right. That is what I would quantify that as. And what do you think about the career options? So अभी हम कॉलेज से निकलते हैं, इधर हमें प्लेसमेंट मिलता है या मैक्सिमम स्टार्टअप करते हैं. तो what do you think कि क्या करियर ऑप्शंस और अवेलेबल हैं, एज इन इफ आई टॉक अबाउट इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स? इंजीनियरिंग के बाद सभी करियर है उनके पास. हाँ, बट जैसे अभी भी बच्चे ना कंफ्यूज, आइदर दे आर नॉट गेटिंग प्लेसमेंट, प्लेसमेंट मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो दे आर जस्ट कंफ्यूज कि अब करना ही क्या है. लाइक देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स ना, कि जिनको मिल गया, who are good at academics and everything. Now there is a lot of majority of students जिनको प्लेसमेंट नहीं मिला. Those are like, those people are in the confusion कि अभी क्या करना. So you're asking for alternate careers or you're asking what are the other options, like जैसे एक startup कर सकते हैं या what else, कुछ interns, what are the options in your mind? See, मतलब like I said, अगर इंजीनियरिंग नहीं करनी तो इंजीनियरिंग के अलावा सब कुछ ही करियर है, from singing to photography to beatboxing to graphic designing to video editing to reel making to thumbnail बनाना to, मतलब there are hundreds of things available. I think dearth of careers is not there. I think you just have to figure out whether you like what you're doing or not. And वो again वो एक चीज permanently carved in stone नहीं हो जाएगी on day one. I think you will take initially a few years to explore that.
Right. So, like I said, so my suggestion or my advice to young students would be like keep on exploring and try multiple things and understand what you really like. Like we was discussing before this podcast recording that I this is my fourth conversation today. I've been speaking since 11 a.m. today. I generally like talking to people. That's my natural trait. And then it's not just I'm chit chatting or gossiping. I'm a technical person, right? I do technical conversations, pitch decks and fundraising. And to know that knowledge or to understand that knowledge, I have to read a lot and learn a lot. I have to match and keep up myself with the industry standard कि इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, राइट? बट मुझे मजा आता है, मुझे जनरली लोगों को हेल्प करने में, लोगों को ज्ञान देने में, और वो ज्ञान देने में इसलिए आता है क्योंकि मेरे पास ज्ञान है पीछे से आता हुआ। ठीक है, ऐसा नहीं रैंडमली मैंने आके कुछ भी बकवास कर दी किसी के आगे। तो जो मेरा जनरल ट्रेट है टू हेल्प पीपल, सपोर्ट पीपल, give them knowledge, give them information, right? That is I enjoy. So I don't generally get tired doing this thing, right? तो आप एक्सप्लोर करो कुछ साल, आपको कुछ ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स अपने बारे में समझ में आएंगे। ठीक है, जैसे लाइक आई सेड, मुझे बात करना बहुत पसंद है, मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है। इफ दैट वुड नॉट हैव बीन द केस, मैं शायद यूट्यूब चैनल भी चालू नहीं करता। तो मुझे हेल्प करना पसंद है लोगों का। तो वो ट्रेड जब आप एक कहीं पे कल्मिनेट कर लेते हो तो इट कैन कन्वर्ट इनटू अ प्रोफेशन। तो आपको फिगर आउट करना है व्हाट इज दैट यू लाइक, एंड देन एक्सप्लोर एंड देन ट्राई एंड देन यू कैन देन अगेन पिवट फ्रॉम वन टू अनदर। वो होते हो जाएगा। मतलब अर्ली 20s यू शुड एक्सप्लोर मोर। अगर नहीं समझ आ रहा है कुछ तो एक्सप्लोर करो, और एक्सप्लोर करके फाइंड आउट करो व्हाट इज इट दैट यू कैन डू, व्हाट यू लव। मतलब जैसे मैं आपको एक चीज और बताऊं रोहन, आपने बिल्कुल ही शुरू में बोला कि ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ टेक्निकल ट्रेनर, राइट? अब आप 15 साल का जर्नी अगर उठा के देखोगे तो वो एक कॉमन थ्रेड ट्रेनिंग का या बोलने का ही है, राइट? तो मैं मेरे स्कूल से ओरेटर था। मैं मेरे स्कूल में डिबेट कॉम्पिटिशन्स करता था, ठीक है? वहां से लेके मैं मेरे कॉलेज में आया तो मैंने अपना खुद का क्लब चालू किया जब बच्चों को कोडिंग और हैकिंग पढ़ाता था। वहां से लेके मैं फिर अपने, जो मैंने बोला यूएस जाना था तो मास्टर्स करने के लिए मैंने जब NIT ज्वाइन किया था एज अ स्टूडेंट, तो वहां पता लगा, एंड नॉट टू डिसरेस्पेक्ट एनीबॉडी, आई न्यू मोर देन द टीचर बिकॉज मैं पढ़ता रहता था ज्यादा। तो उन्होंने मुझे ऑफर दे दिया कि यार आप मैं वहां पढ़ाने लग गया। तो मैंने वहां से पढ़ाना जब शुरू किया तो मैं फिर कंसल्ट भी किया, करंट कंपनी भी उस टाइम की कंपनी भी चलाई, उसमें मैंने एक रॉक कोड करके कोचिंग प्रोग्राम चालू किया। तो 2015 तक तो मैं कोडिंग ही पढ़ा रहा था बच्चों को। फिर जब मैं नई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी मैंने, स्टार्टअप ओएसिस, 2014 तक, 14-15 में जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया IIM वेंचर्स में, तो वहां पे अगेन वो पढ़ाने वाला कंटेंट चेंज हो गया। अब मैं आपको पिच डेक कैसे बनता है, ब्रांडिंग कैसे होती है, मार्केटिंग कैसे होती है, फंडिंग कैसे, वो पढ़ाने लग गया। वो करने का जब मैं पावर डेक में आया तो अब मैं वापस से पिच डेक, फंडिंग, मार्केटिंग, तो वो बोलने का एक कंपोनेंट, तो ये मेरा स्ट्रेंथ एरिया है। राइट। Clearly communicating content with clarity is my strength area. This I figured out over time. अब इसमें तुम मुझे AI के बारे में बोलने को दे दो तो मैं बोल दूंगा, और तुम हेल्थ के बारे में बोलने को दे तो मैं बोल दूंगा। हाँ, मैं पढ़ूंगा, स्ट्रक्चर बनाऊंगा, मेरे कैपेबिलिटी ऑफ स्टोरी टेलिंग डालूंगा। तो ये आप विद टाइम फिगर आउट कर लोगे कि आपका स्ट्रेंथ एरिया क्या है, व्हाट इज दैट स्ट्रेंथ एरिया। वंस यू गेट दैट, आई थिंक यू क्लियर, देन यू कैन बिल्ड एनीथिंग ऑन टॉप ऑफ इट। सो आई थिंक द कोर ट्रेट जो आपका है वो आपको आइडेंटिफाई करना है। उसको आइडेंटिफाई कर लिया, आई थिंक देन यू कैन बिल्ड स्किल्स अराउंड व्हाटएवर थिंग्स यू वांट। करेक्ट। बट इफ यू गेट द कोर थिंग्स करेक्टली, इट वुड हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। और वो करने में मजा भी आना चाहिए बेसिकली। हाँ, सबसे बड़ी बात है मजा आना मुझे बोलने में, मतलब मुझे बोलने में मजा आता है। मैं जब बोलता हूँ तो कोई व्यक्ति मेरी बात सुन भी रहा है, उसको सुन के शायद कुछ समझ में भी आ रहा है, और मुझे उस बात का पैसा भी मिल रहा है, और मुझे मजा तो आ ही रहा है। हाँ, ये पूरा एक वैल्यू साइकिल है। राइट। अब मैं बोलने में मजा आ रहा है, बट बोल तो वो भी लोग रहे ना जो सड़क के कोने में बैठ के बकवास कर रहे हैं, राइट, बट उसमें कोई वैल्यू ट्रांजेक्शन नहीं है। राइट। तो यू हैव टू फिगर आउट कि वो वैल्यू आप कहाँ क्रिएट करते हो, वो किसी अगले व्यक्ति के लिए वैल्यू कहाँ क्रिएट करते हो, एंड व्हेन यू क्रिएटिंग दैट वैल्यू, कैन यू देन मोनेटाइज दैट वैल्यू, देन इट बिकम्स फन, राइट? एंड लाइक एज यू सेड राइट नाउ कि ड्यू टू कि आपको बोलना बहुत पसंद है, और आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात कोई भी आइडिया को बहुत क्लैरिटी से प्रेजेंट करना, आई थिंक दैट इज व्हाट आपके कंटेंट में भी रिफ्लेक्ट होता है। एंड देन दिस स्टोरी क्रिएशन इज समथिंग, आई थिंक आप पावर डेक इसके थ्रू भी आप स्टोरी एक बिल्ड कर रहे हैं स्टार्टअप्स के लिए। करेक्ट। नाउ कमिंग टू द कंटेंट,
अभी आपका कंटेंट जैसे मैं देखता हूँ, आई पर्सनली लाइक इट वेरी मच। जो जिस तरीके से आप कितनी इजीली कोई भी टॉपिक को शॉर्ट कंसाइज करते हैं, हाउ यू थिंक कि ये कंटेंट important है, as in storytelling and content both are important either for whatever you are doing Sure. personal branding, you are doing startup or whatever। कितना important है और क्यों सीखना है, मतलब आगे क्या है इसका स्कोप? I think content तो शुरू से important रहा है, that's the reason books exist, right? That's the reason जब books नहीं थी तो हम सब ने वो जो हाथी चींटी की कहानी, टॉर्टोइज की कहानी, थर्स्टी क्रो की कहानी सुनी है ना? Right. So content has been what has kept humanity alive, right? If you read this book called Sapiens by this guy Yuval Noah Harari, it says that Homo sapiens could survive because we are gossip mongers. बैठ के बातें करना. So we are a species which is a gossip monger and we have a trust factor. That's the reason we could survive and became literally the king of the world, right? Now शेर आ जाए चाहे चीता आ जाए, हम सबको हरा देते हैं, right? चाहे हाथी आ जाए. So this is a thing that humans kind of have an inbuilt thing. Like Homo sapiens could crack this, right? I think content has been important forever. I would only say it's just that the field has become much more open. The space has been democratized, right? And now everybody can create content to get their own audience. So हमको ऐसा लगता है कि and good part by being in India is कि हमारे पास इतनी जनता है कि हर चीज का कंज्यूमर है, राइट? तो आप डांस करोगे उसका भी कंज्यूमर है, आप गाना गाओगे उसका भी है, आप क्रिंज गाना गाओगे तो भी है. तो मतलब I see sometimes कि इंस्टाग्राम पे जो बहुत अच्छा गाना गा रहा है उसके 300 के फॉलोवर हैं, बट जो क्रिंज गा रहा है उसके 500 के हैं. उसका राइट, ऐसा होता है. तो सबका कंटेंट कंज्यूम करने वाला है. ऑफ कोर्स देखो उसमें वही है कि अच्छा लोग कम फॉलो करना चाहते हैं, मस्ती टाइम पास ज्यादा करना चाहते हैं, वो जनरल माइंडसेट भी, बिकॉज़ नॉट एवरीबॉडी हैज अ ग्रोथ माइंडसेट एंड दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट एंड अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर. बट I think I can't emphasize content has been like it's been important forever, and now because the field has been opened up. See, it's so easy to record this podcast today. This would not have been possible, let us say 20 years ago or maybe 15 years ago, right? We have good quality internet, we have stable internet, we have affordable internet, good quality cameras, good quality setups, everything at a click of a button. तो डेमोक्रेटाइज हो गया है, ओपन हो गया है. अब मोबाइल फोन के कैमरे से आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, तो सबको करना चाहिए मेरे हिसाब से. एंड नाउ गेटिंग लाइक मोर इनटू कंटेंट, लाइक अभी कई स्टूडेंट्स भी कंटेंट बना रहे हैं. द मेजर प्रॉब्लम आई थिंक मुझे भी समझना है आपसे. नाउ यू हैव बीन टू कंटेंट इंडस्ट्री फॉर सो लॉन्ग. आपने जब स्टार्ट किया होगा तब एंटायरली डिफरेंट वीडियोस बनती होंगी. नाउ व्हेन यू कम एंटायरली डिफरेंट कंटेंट. यस. तो लाइक हाउ डू यू प्लान अप योर कंटेंट कि यार इस तरीके से जाना चाहिए या क्या की एलिमेंट्स होने चाहिए? देखो मैं अपने आप को ना टिपिकल कंटेंट क्रिएटर नहीं मानता, राइट? इसमें थोड़ा सा आपको लेंस बदलना पड़ेगा और पर्सपेक्टिव बदलना पड़ेगा. बहुत सारे लोग ना टिपिकल कंटेंट क्रिएटर होते हैं. वो मे बी आइडियाज ढूंढते हैं, कंटेंट प्लान करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, शूट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं. मेरा लेंस बहुत अलग है. आई एम एन एंटरप्रेन्योर फर्स्ट, and maybe with an entrepreneur I don't want to or I never say I'm a mentor, but I'm a entrepreneur and educator. That is how I put myself in. तो मेरा अगर आप वर्क प्रोफाइल देखोगे, so generally भी my entire day goes into talking to people. फाउंडर्स को एडवाइस करना, किसी को टेक में हेल्प चाहिए, किसी को स्टोरी में हेल्प चाहिए. उसी से बहुत सारे मेरे खुद के भी लर्निंग्स होते हैं. कुछ रियलाइजेशंस होते हैं, कुछ सडन रियलाइजेशंस होते हैं. कुछ मुझे कई बार लगता है कि ये तो बड़ी कॉमन बात है, अच्छा इसको नहीं पता, तो इसका मतलब बहुत लोगों को नहीं पता. तो अगर आप मेरे पिछले 5-7 वीडियोस जाके देखोगे तो वो बहुत जनरल उन इंसिडेंसेस पे हैं जो रियल हैं. मतलब जो लास्ट वीडियो था ऑन टेकिंग मनी इन ट्रांचेस, I lost a company because I did a bad deal with an investor because I took money in tranches and he literally failed to pay the money. तो कंपनी बंद हो गई मेरी. आप सोचो 5 साल की मेहनत. और ये मेरा एक दोस्त गलती करने वाला था जिससे मुझे अभी कॉल किया कि मैं अपना नया राउंड रेज कर रहा हूँ. उसको मैंने आधे घंटे लेक्चर दिया. तो मैंने कोई कंटेंट प्लान नहीं किया, मैंने बस उसी इंसिडेंट को आके कैमरे पे बोल दिया. राइट. अब एक्सपेक्टेशन ठीक है भाई, मिलियन लोग देखे, नहीं देख रहे, बट जो 200 ने भी देखा, 500 ने भी देखा, 1000 ने भी देखा, at least they found it important and insightful, and it's a lifelong content.
जो हम कहते हैं ना एवरग्रीन कंटेंट है वो राइट वो ये नहीं है कि आज लेट अस से आशा कूड़ा फेमस हो गया तो उस पर डांस कर दिया और कल को लेट अस से कोई छम्मक छल्लो फेमस हो गया उस पर डांस कर दिया. राइट This advice will be a valuable advice for anybody who's aspiring to be a founder or trying to raise fund. एक मैंने जैसे इसके पहले कंटेंट पीस किया था which is on signing NDA. तो किसी ने मुझे रीच आउट किया, व्हाट्सएप मैसेज है मेरा, उसमें मैंने स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप का डाला है कि नहीं मुझे तो आपसे NDA साइन कराना पड़ेगा डेक के लिए. पहले मैं दिन के 10 डेक रिव्यू करता हूँ ऑन अ डेली बेसिस. वी आर पार्टनर्स विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जहाँ से हमको डेक भर भर के आते हैं कि आप रिव्यू कर दो इनका. मैं दिन के 10 NDA साइन करूंगा तो मैं साल भर में तो पागल हो जाऊंगा. सही बात है. So again, that became advice. So my content is more of a, I would say, advice, which is a general advice to founders that they should know. And how I position it, like जो मेरे YouTube का title भी है कि honest, practical, actionable. I will never ever sugarcoat the advice. And मैं बदनाम भी उस चीज को लेकर थोड़ा सा कि I go sometimes a little brutal with people. But then again मैं analogy दूँ तो I see my role as a doctor. वो इंजेक्शन लगाना ही पड़ेगा, आप किसी को तो इंजेक्शन लगाना पड़ेगा बच्चे को पकड़ के. तो मैं अपने आप का रोल ऐसे दिखता हूँ. तो मुझे लगता है कि शायद अगर मेरे आज की उस एडवाइस से उसका भला हो जाए तो आज तो मुझे गाली देगा कि यार क्या बकवास आदमी है. और ऐसा हुआ है. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आज से 2 साल पहले 3 साल पहले मैंने उनको कुछ बोला और वो बिल्कुल ऐसे चिढ़ के फ्रस्ट्रेट हो गए कि तुम इससे बेकार आदमी नहीं मिला मैं दुनिया में, जिंदगी में इससे बर्बाद आदमी नहीं है. और उन्होंने सेम ने 2 साल बाद आके 3 साल बाद आके जो नया इनकमिंग बैच है उसको बोला कि नहीं ये आदमी सही बोलता है, इसकी बात सुन लेना. हमने भी बहुत मनी मन गालियां दी थी बट इनकी इसी आदमी की एक एडवाइस है जो काम आई है हमारे. राइट. एंड बिकॉज़ आई डोंट वांट टू शुगर कोट इट, आई वांट टू बी टेल यू ब्रूटली कि भाई ये करेगा तो ये होगा. इट्स अ फैक्ट. और कहीं ना कहीं ये रिस्पांसिबिलिटी भी आती है. हाँ, तो I that's why I take full responsibility for whatever I'm producing, right? It's there on the internet, that's why. Right? So मैं अपने आप को as a like I said, as an entrepreneur, as an educator देखता हूँ. And मैं इसीलिए उसको कोई ऐसे स्पेशल प्लानिंग नहीं करता. I'm just sharing my experience with people and that is how I go about it. Nice. So it's important to पहले की तो आप वो knowledge gain करो, तब वो content naturally बाहर आएगा. Rather than if you are going content first, you will always struggle कि यार अभी क्या करें and आप वो engagement cycle में अटक जाओगे. यार देखो ऐसा है ना, बहुत मैं आपको एक कॉमन चीज बताता हूँ. बहुत सारे लोग बहुत सारी जनरल बातें प्लेटफॉर्म पे करते हैं. इंस्टाग्राम पे करते हैं, यूट्यूब पे करते हैं, अच्छी बातें करते हैं. बट आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ दिस कंटेंट इज वेरी सुपरफिशियल, टॉप ऑफ द लेयर है, फोम है वो. बिकॉज दे आर ओनली कंटेंट क्रिएटर्स, दे डोंट हैव अ डेप्थ. टू गेट अ डेप्थ यू हैव टू बी एन एक्सपर्ट इनटू दैट सब्जेक्ट. एंड मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूं कि अ गुड मेंटर विल नॉट टेल यू व्हाट टू डू, ही विल टेल यू व्हाट नॉट टू डू. एंड वो नॉट टू डू करने के लिए उसने बेचारे ने दर धक्के खाए होने चाहिए. तो आप अगर आपका अप्रोच सिर्फ इंस्टाग्राम पे कंटेंट या यूट्यूब पे कंटेंट बनाना है जस्ट टू क्रिएट अ हॉरिजॉन्टल कंटेंट, दैट इज आल्सो गुड, करना चाहिए. मैं अगेंस्ट नहीं हूं उसके, बिकॉज वो अवेयरनेस लाएगा, वो लोगों में वाइड इंफॉर्मेशन स्प्रेड करेगा, उसका रीच ज्यादा है. कुछ नहीं तो अपनी स्किल्स ही इंप्रूव कर देगा. करेक्ट. बट उसके बाद जब डेप्थ की बारी आएगी तो आपको एक्सपर्ट चाहिए वहां पर. वो एक्सपर्ट आप काम करके ही बन पाओगे. वो एक्सपर्ट मतलब प्री मनी वैल्यूएशन ये होता है, पोस्ट मनी वैल्यूएशन होता है. इस पे कोई भी इंटरनेट से डेफिनेशन पढ़ के पोस्ट बना सकता है. राइट. बट टर्म शीट कैसे पढ़ते हैं, दिस इज वेयर द थिंग काइंड ऑफ चेंजेस और नुआंसेस ऑफ दिस. तो दैट इज द बिट. एंड whoever is listening this, मैं आपको एक बात बताऊं, दिलनवाज जी ने एक बहुत ही अच्छा सीक्रेट रिवील करा है कि देयर इज अ गोल्डन लाइन. इफ यू आर गेटिंग दैट डेप्थ एंड इफ यू आर वर्किंग ऑन योरसेल्फ फर्स्ट एज अ एक्सपर्ट इन योर फील्ड, आप धक्के खा रहे हो, देन देयर इज अ गोल्डन लाइन. बिकॉज बहुत सारा कंटेंट सुपरफिशियल हो रहा है, देन इट्स मच इजियर फॉर यू टू पेनिट्रेट द मार्केट जब इन द एंड चाह रहे हो कहीं ना. सो दैट्स अ अमेजिंग पॉइंट. And sir, you have been to so many colleges. You are traveling to different cities. मुझे याद है आपके conversation से आपको travel करना बहुत पसंद है. Travel and work you like. हाँ, तो travel not for vacation and not to but my travel happens with my bag, जिसमें एक laptop, एक iPad, मेरी एक डायरी होती है और मैं दिन भर जाके होटल में काम करता हूँ. That is the travel I enjoy. मैंने बहुत ही सारे Instagram पे आप जाके stories या pictures देखोगे तो and I acknowledge that.
कि मेरे को नहीं पसंद वो फोर्ट देखने जाना और जंगलों में जाके घूमना, मैं नहीं हूँ. एटलीस्ट टुडे आई एम नॉट दैट पर्सन. आई लव दैट हसल. मतलब I know this word has been demeaned in a few years, but I love that hustle. Early morning flight, traveling to places, talking to people, delivering lectures, reading books on the go, hustling from one place to another, अच्छे होटल में जाके अच्छा खाना खाना और अच्छे लेक्चर्स देना अच्छी जगहों पे, अच्छे एम्फी थिएटर में जाके. मुझे नहीं जाने पहाड़ देखने अभी, मैं मुझे नहीं देखनी नदी, अभी नहीं देखनी. मैं शायद 50 का हो जाऊंगा, उसके बाद मैं जाके नदी पहाड़ एंजॉय करूंगा. आज नहीं करना. मेरा थोड़ा अलग है फंडा, बिकॉज आई लाइक एटलीस्ट यू हैव क्लैरिटी, नो, कि आपको पता है कि भाई मेरे को क्या चाहिए. नहीं, ऐसा नहीं मैंने नहीं किया, बट मुझको मैं बस ले लेता हूँ साल में एक आध दो ऐसी वेकेशंस भी, बट तब भी लैपटॉप साथ जाता है मेरा. तो at least today work is a priority, is a focus. So what do you feel like, you have been to different cities, कौन सी सिटी में सबसे ज्यादा आपको टैलेंट की, आई नो दिस क्वेश्चन आप आंसर करना चाहोगे, आई डोंट नो, बट कौन सी सिटी में सबसे ज्यादा टैलेंट देखने को मिलता है कि यार ये सिटी में ना मजा आ गया? from the startup point of view या student point of view? Let's speak startup and student, let's divide it. देखो, अगर स्टार्टअप का आप बात करो तो you'll undefeated ये क्या बोलते हैं, what do you say, undoubtedly it's Bangalore, right? और उसका बहुत natural reason है that the ecosystem is there, right? So the moment you become even a little big as a company, you have to put your foot in the Bangalore. And then everybody is there and the talent is there, right? हाँ, अच्छे और इकोसिस्टम्स भी हैं, तो ऐसा नहीं है कि 1 2 3 4 रैंकिंग है. मैं ऐसा बोलूंगा कि आई वुड कंपेयर लेट अस से मुंबई एंड दिल्ली एट एन इक्विवेलेंट लेवल, राइट? आई वुड से कि इवन टियर 2 में अगर आप जाओ, ठीक है, हैदराबाद ले लो, चेन्नई का मुझे बहुत आइडिया नहीं है, बट हैदराबाद ले लो, पूना ले लो, जयपुर ले लो, राइट? अहमदाबाद है थोड़ा थोड़ा बहुत. तो टैलेंट तो है सब जगह. मतलब लाइक आई सेड, वो AIR1 वाला कॉन्सेप्ट नहीं है कि ये AIR1 है, ये AIR2 है, बट जहां इकोसिस्टम है वहां टैलेंट होगा, ठीक है, राइट? और आपका फ्रेशर टैलेंट भी वहीं मूव करेगा, आपका सीनियर टैलेंट भी वहीं मूव करेगा. हाँ, इजी एक्सेस है, बहुत कुछ है, तो इजीली लोग वुड शिफ्ट देयर. यस, एंड unfortunately that is how it is designed. Like it's like I was talking to somebody and I was just giving an example कि अब आपको एक्टर बनना है तो मुंबई जाना ही पड़ेगा ना. अब आप दिल्ली में बैठ के बोलो कि मैं एक्टर बनूंगा, तो आप थिएटर कर सकते हो, राइट? बट फिल्म स्टार बनने के लिए मुंबई ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इकोसिस्टम वही है. अब आपका कास्टिंग डायरेक्टर ही वही बैठा है सारा, सही बात है, आपका प्रोड्यूसर ही वही बैठा है, आपका शूटिंग ही वही होता है, तो आप कैसे करोगे? आप कह रहे हो मुझे फाइनेंस में करियर बनाना है, तो मुंबई जाना ही पड़ेगा आपको अगेन उसके लिए. पूरा फाइनेंस अब मुंबई से चलता है, राइट? तो that is the thing. So I think Bangalore would be the number one, and then other cities of course where the ecosystem is. So Bangalore, Delhi would be your number one, and then you have other cities. आपसे बात करते करते ना एक क्वेश्चन मुझे और आया. जब आप ये पावर डेक रिव्यू कर रहे हो, आई एम गोइंग बैक टू योर ट्रैवल सिचुएशन, जा करके 10 आप डेक देखते होंगे, कई बार ऐसा आता है मन में कि यार ये कैसा स्टार्टअप है, कैसे चलेगा? बहुत सारे आते हैं. एक नहीं आता, हजारों के बारे में आता है. हाउ डू यू डील विद दैट? नहीं, आई एम नोबडी टू जज. मतलब उस टाइम पे आई थिंक मेरा ड्यूटी उसको फीडबैक फ्रॉम अ पिच डेक देना है, मे बी थोड़ा बहुत ऑन अ बिजनेस मॉडल देना है, बट आई एम नोबडी टू जज. एंड व्हाई शुड नॉट डू समथिंग which maybe they like doing. भाई सबको, एंड मैं बहुत क्लियर मानता हूँ, सबको $1 बिलियन कंपनी नहीं बनानी, सबको $1 मिलियन कंपनी भी नहीं बनानी. मेरा ऐसा मानना है, अगर एंटरप्रेन्योरशिप आपके लिए एक सस्टेनेबल करियर बन जाता है, आई थिंक इट्स ब्यूटिफुल. नथिंग कैन बीट दैट. सो डोंट लाइक, व्हाई डू यू हैव टू like aspire to be $1 million company? No harm in that. Aspire to make a $1 billion company, but maybe that next person is not looking to make a $1 billion company or $1 million company. Maybe he is looking to create a company maybe with 2 or 5 crores as a top line, and maybe make 50 lakh rupees in a year, and then enjoy the travel and vacation and all of those things. So whom am I to judge? Or maybe इसका काउंटर एग्जांपल एक और लेते हैं कि कई बार ऐसा भी होता है कि मे बी वो फाउंडर बहुत यंग है. अब ऐसे मुझे आते हैं डेक्स, जैसे मैं एक का एग्जांपल देता हूँ कि हमें 1 करोड़ रुपए मिल जाएगा तो हम ब्लिंकिट को हरा देंगे, हमारे पास यूनिक समथिंग है. अब वो मुझे पता है कि वो 20-22 साल का लड़का है, तो
उसको अभी मैं समझा भी दूंगा या उसमें इतनी अवेयरनेस नहीं है कि ही वुड नो कि ब्लिंकिट के लिए आपको अगर 100 करोड़ रुपए भी मिल जाएंगे तो भी आप नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स नॉट अ टेक फाइट, राइट, इट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन फाइट। डिस्ट्रीब्यूशन फाइट, तो राइट। ये 18 19 20 साल में इतनी अकल नहीं होती, इतनी बुद्धि नहीं होती, राइट। इसका मैं आपको एक और अपने एक्सपीरियंस एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक टेक्नोलॉजी कंपनी भी रन करी है, अब मैं फंड रेजिंग एडवाइजरी कंपनी रन करता हूँ। टेक कंपनी में जब कोई भी आता था हम उसको बेस्ट से बेस्ट टेक प्रोडक्ट बनाने की एडवाइस देते थे। फंड रेजिंग कंपनी में हम उसको बोलते हैं टेक बनाई मत, इतना बिना टेक के आइडिया वैलिडेट करके आ जितना लीन हो सके, राइट। बिल्कुल काउंटर एग्जांपल है। तो जब 5 7 10 साल पहले जब मैं टेक्नोलॉजी कंपनी चला रहा था, आई वाज ट्राइंग टू अपसेल एंड टेल देम ओके बिल्ड द बेस्ट टेक्नोलॉजी, नाउ आई सेइंग डोंट बिल्ड टेक्नोलॉजी, राइट। तो एक with time also you understand a few things. Now I understand why when I had a client back in that time, 2015-16 की बात है, एक क्लाइंट आता था, मैं उसको बोलता था सर आपकी ब्रांडिंग खराब है, एंड ही वुड बी लाइक अरे यार बस इतनी कर ली, इतना बहुत है, अब ये कर दो, लैंग्वेज ठीक कर लो, डिजाइन लैंग्वेज ठीक कर लो, ये कर लो, वो कर लो। आज इफ यू आस्क मी, माय वेबसाइट हैज नॉट बीन अपडेटेड फ्रॉम पास्ट 3 years। मेरा एक लिंक्डइन, एक मेरा प्रपोजल का पीपीटी, these two documents drive my entire business. And I'm not saying I don't need a good website. I need a good website. But looking at the current bandwidth, right, and the focus area, which is sales, right, and operations, it is not my priority. तो मुझे अभी थोड़े दिन पहले बड़ा ना ये डेजा वू या नॉस्टैल्जिया हुआ कि कोई मुझे सेम चीज पिच कर रहा था कि यार आपकी वेबसाइट तो बेकार है, वेबसाइट तो अच्छी बननी चाहिए, और मैं कह रहा हूँ तुझे धंधा ही समझ में नहीं आता। तो you understand a few things with time, और वो maturity आप में थोड़े समय के बाद अपने आप आती है उसके। तो इट्स बेटर कि आप मेंटर की एडवाइस को या तो बेटर आंसर कर पाओ rather than ignoring and taking it on कि भाई ऐसे थोड़ी होता है। ट्राई टू कि उनका बेटर आंसर कर पाओ। इफ यू कैन सेटिस्फाई हिम, गुड, ट्राई गो विद दैट ऑप्शन, मच easier way to do this. No sir, it was a nice, I think I have a lot of questions, but I would like to keep it short so that bulk up ना हो जाए किसी के लिए भी। Sure. And I would love to talk to you again. And definitely maybe, we can have a part 2 of this podcast. Yes. And even we can go live, like answering questions with people sometimes. Happy to do that. Because let's do that on LinkedIn maybe sometime. We can do like a LinkedIn live. Happy to do that. Yeah, absolutely. Yeah, let's plan that. And thank you so much. No, my pleasure. And I appreciate that. Thank you so much for inviting me. There is a lot to learn from you. Thank you so much. And I don't think one podcast is enough, but I'll see you soon. Thank you so much for your time. Thank you. Pleasure. And good to have you. Thank you. Thank you so much. Bye bye. Bye bye.